أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اکثر ہمارے سب کے بعد اسکول میں پڑھنے والے عصری طلباء کا ایک پروگرام ہوتا ہے یہاں ان کی مجلس ہوتی ہے. امید ہے کہ حضرات ہر سال آتے ہوں گے. بعض لوگ ہو سکتے ہیں کہ نئے ہوں جو پہلے شریک نہ ہوئے ہوں, باقی اکثر تو آتے رہتے ہیں. اس مجلس میں بھی ایسے ہوں گے جو پہلے آئے ہیں. کون کون ہے جو پہلے آئے ذرا اٹھاؤ. ماشاء اللہ, اللہ تمہیں خوش رکھے, سلامت رکھے. آپ لوگ گزشتہ سال میں آئے تھے, اس سے پہلے سالوں میں بھی آئے ہوں. تو آپ کو یاد ہے کہ اثر کے بعد مجلس میں کیا باتیں کہتے ہیں؟ آپ کو خالی یہاں اثر کے بعد دین کی بات سنانے کے لیے نہیں جمع کرتے. اگر خالی دین کی بات آپ سنانا ہوتی تو ابھی پنڈال میں جو بیان ہو رہا ہے وہ کون سا ہو رہا ہے؟ ارے بولو بھائی, آپ کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ادھر ہی بیٹھ جاؤ, ایسا کہتے ہیں. مگر آپ کو ایسا نہیں کہنا, آپ کو یہاں الگ سے جوڑا گیا ہے نا, اور ہر سال جوڑا جاتا ہے. اور آپ سے متعلق چند باتیں خصوصی طور پر آپ سے کہتے ہیں. آپ نے گزشتہ سال بھی وہ سنی ہوگی, اس سے اگلے سال بھی سنی ہوگی. سنی تھی بھائی؟ ارے بھائی سنی تھی. کس نے سنی تھی؟ اچھے سے اٹھاؤ. آپ کو وہ باتیں یاد ہے؟ آپ کو کیا کیا کرنے کو کہا تھا جی؟ کچھ باتیں وہ تھی جو آپ کو اپنے ذات سے کرنی تھی, اور کچھ باتیں وہ تھی جو آپ کو اسکول ہاسٹل میں کرنی تھی. برابر ہے؟ تو آپ حضرات نے وہ شروع کر دی. ارے بھائی شروع کر دی. اچھا کس نے کی ذرا بات بتاؤ. اچھا اپنی ذات سے گزشتہ سال مجلس میں یہ بات کی تھی, اس کے بعد سے ہم نے یہ شروع کی, آپ نے شروع کی. ذرا کھڑے ہو. آپ نے کیا سنا تھا اور کیا شروع کیا تھا؟ جلدی 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 جاؤ. ہو جوان ابھی بڈھے کی طرح کھڑا ہوتا ہے. آ جاؤ. سامنے دیکھتے پچھلے سال جب آئے تھے اور مائک اچھے سے کرے گا. کالج میں پڑھتے ہیں اور چلو جلدی جلدی ٹائم پہنچا دے. جی کالج میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو ملاقات کے اعتبار سے ہمیں رہنمائی بتائی گئی تھی کہ ملاقات جو ہو رہی تھی پہلے جوڑی کے حساب سے ہو رہی تھی, 3 جوڑی بن رہی تھی. تو پھر ترتیب دی گئی کہ ہاسٹل وائز آپ جوڑی بنا لیا کریں. تو وہ ہوا اور اس پہ محنت کی گئی کہ ہاسٹل وائز ہم نے جوڑی بنا لی. ہاسٹل وائز ملاقات ہو جائے گی, اور اللہ کے کرم سے ایک ہاسٹل میں 2-3 جوڑیاں بھی جو بڑے ہاسٹل ہیں. اور اس کے علاوہ تعلیم کا جو تھا کہ تعلیم ایک جگہ ہو رہی تھی اور اس کے بعد مشورہ ہو رہا تھا, تو اس کو کس طرح بڑھایا جائے اس کی فکر دلائی گئی تھی, اور 2 گز کا بتایا گیا تھا تو اس کی فکر. یہ تو آپ نے پوری کرداری سنائی جو آپ نے ہاسٹل میں کیا. آپ کی ذات سے آپ کو کرنے کو کیا کہا تھا؟ آپ کی ذات کے لیے ذاتی طور پر نمازوں کا اہتمام اور دعا تہجد میں جو بتایا گیا تھا تو اس کی کوشش جو تھی. اچھا, اور آپ کو آپ کی پڑھائی اچھی کرنے کو کچھ نہیں کہا تھا جی؟ وہ کیا کہا تھا؟ آپ محنت ایسی کرنا کہ آپ کا آخری نمبر آئے. برابر ہے؟ تو کیا کہا تھا جی؟ رجسٹر کیا ڈیزائن کیا تھا سب نے؟ ذرا زور سے بولو. 90 آپ بھول گئے نیت جو یہاں بچ کروائی گئی تھی. بھائی کسی کو یاد ہے کیا کہا گیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ بھائی اچھی تعلیم, اپنی پڑھائی پر توجہ دینا. آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, بڑی قربانی دی ہے. آج کل کتنا خرچہ ہوتا ہے, اور اکثر کے والدین حالات میں ہیں, بہت امیدوں کے ساتھ آپ کو پڑھنے بھیجتے ہیں, اور کالجوں کا ماحول اکثر غفلت کا ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو جائے کہ جو غفلت کی رو سب کے اوپر ہوتی ہے وہ آپ پر بھی چھا جائے اور آپ اپنی پڑھائی میں سستی کرو. ایسا نہیں ہو, بلکہ آپ کی پڑھائی میں آپ اچھے سے اچھی محنت کرتے, اچھے نمبرات سے, اعلیٰ نمبرات سے کامیابی ہوتی. باتیں نہیں کہیں گی
अच्छा कही थी, आपने सुनी भी नहीं या याद नहीं रखी? अच्छा याद नहीं रखी, अच्छा कोई बात नहीं, याद नहीं रही वो काम किया है आपने? गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आपकी पढ़ाई इस साल अच्छी हुई या नीचे गई? बड़ी, कितनी बड़ी, क्या बड़ा? मुझे इसमें समझ नहीं पड़ती, आप बता दोगे मैं मान भी लूंगा। जो ओवरऑल ग्रेड था अच्छा वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ थोड़ा, और इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अभी एक ज़िले में थे, तो उस ज़िले में एक लड़के ने खड़े होकर कारदारी सुनी कि मैं 16 सब्जेक्ट में फेल हूँ। कितने में? तो मुझे स्कूल वालों ने पूरी बिल्डिंग में घुमाया, बोल दिया कि देखो ये नमूना है। फिर यहाँ मजलिस में आया, यहाँ तक मुझे भी बात हुई, मैं फिक्र नहीं कर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 साल में 16 से 16 क्लियर कर दिया। उसने ये कहा। दूसरे ने कहा, मैं पहले पढ़ाई में मुझे, उसने जो जुमला इस्तेमाल किया वो ये कहा, मुझे आलस थी, कोई गुजराती था ना, तो आलस सुस्ती को कहते हैं, मुझे आलस आती थी, मगर जब यहाँ मजलिस में आया, यहाँ से बातें सुनकर गया तो टॉप में मेरा नंबर है। उसने ये कहा। तो आपको दोनों बातें कही थी, आपके साथ की भी और दूसरों पर मेहनत करने की। क्यों कि अपने ज़ात पर मेहनत करना ये अमानतदारी की बात है ना। अमानत किसको कहते हैं? जो काम हमारे जिम्मे आया उसको ऐसे करना जैसे उसको करने का हक है। अल्लाह का हक भी हमारे ऊपर है, वो भी अमानतदारी से अदा करना। और हम जिस काम में मशगूल हुए हैं, तो हमारे वालिदैन ने हम पर एतमाद किया, हमें पढ़ने भेजा है, तो अमानतदारी से पढ़ें, तो ये अपनी ज़ात का हक बना। और दूसरे जितने ईमान वाले हमारे हॉस्टल और स्कूल में है, वो हमारे भाई हैं। दुनिया के किसी कोने का भी वो बच्चा हो, वो हमारा क्या है बोलो? भाई है। और अल्लाह के नबी इस्लाम ने बात फरमाई कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए करते हैं। उसके लिए आपको बताया था कि अपने हॉस्टल में, अपने स्कूलों में और ईमान वाले जितने भी हों, वो सुस्ती करें, गफलत करें, या अल्लाह के फरमानियों में हो, गुनाहों में हो, तो इनको इसमें से निकाल लेना है। क्योंकि अगर वो इस गफलत और गुनाह में रहे तो ये अल्लाह के निगाहों से गिर जाएंगे। और खुदा न करे अगर ये गुनाहों में और गफलत में रहते हुए पढ़ेंगे तो न इनकी दुनिया अच्छी बनेगी, न इनकी आखिरत अच्छी बनेगी, न इनकी तालीम में जो होगी, न ये आखिरत बनने वाले अमल कर सकेंगे। उसके लिए आपको कहा था भाई उनकी हमदर्दी करना, दो की जोड़ी बनाकर ऐसा निज़ाम बनाना मुलाकातों का कि अपने हॉस्टल में रहने वाले हर ईमान वाले से मिलना है, और कम से कम 15 दिन में एक मुलाकात हो जाए। तो वो काम तो आपने शुरू कर दिया है ना। आपके हॉस्टल में कितने ईमान वाले हैं? 18। और सब नमाज में आ रहे हैं? 12 के करीब आ गए। पिछला साल कितने थे? पिछले साल 25 थे, कुछ हॉस्टल से बाहर निकल गए। अच्छा, इन नमाजों की तादाद में इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं या पढ़ने में सुस्ती करते हैं? जो कुछ नमाज है जो मुश्किल के वजह हो गई, तो उसमें थोड़ा सुस्ती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अपने स्कूल की पढ़ाई में वो कैसे चल रहे हैं? आप हजरात ने उनको स्कूल की पढ़ाई अच्छी मेहनत से वो करें, उसकी उनको फिक्र दिलाई थी? दिलाई थी, वो मेहनत है। और अगर आपने किसी को गफलत में देखा, कमजोरी में देखा, उसको फिर फिक्र दिलाए तो? जी ऐसी कमजोरी नहीं, जैसे एक साथी थे हमारे जो यानी 3 से एकदम दूर थे, हाँ। जो नमाज का भी कोई अंदाजा नहीं था, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ईमान का भी बहुत ज़्यादा पीछे थे, बहुत ज़्यादा गफलत वाली ज़िंदगी में थे। तो जी। उनसे मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर 15 दिन में 1 मुलाकात हुई, तो पहले फिर बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। फिर अल्लाह के करम से अल्लाह ने ऐसी हिदायत दी 2 मरतबा मुलाकात उसके बाद कि उनके दिल में अल्लाह ने बात बताई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी छोड़ के आज ऐसा है कि वो खुद मुलाकात में आए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी कमाई आपने कर ली। अभी हॉस्टल चेंज हो गया, तो दूसरे हॉस्टल में मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरे हॉस्टल से वो खुद जोड़ में 30-40 साल से वो खुद ले जाते हैं। माशाल्लाह। वहाँ पे 34 बच्चे कायम करें, तो हर 3 हफ्ते में उनसे मुलाकात हो जाती है, मदरसा जमा करते हैं। उसके अलावा और भी कई पीजी में बच्चे हैं, तो उनकी भी टिकट दिलाई जाती है, तो उनसे भी मुलाकात होती है। तो उनसे हर महीने या 2 महीने में एक बार मुलाकात हो जाती है, जिनमें हम शहर के शादी को भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर बालों की जमात बनती है तो उनका इस्तेमाल करते हैं, और उन तक पहुँचते हैं हर बच्चों तक। ये जो बालों की कितने ये रास्ते पे जितने भी पीजीज हैं और जितने बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो सबसे एक बार मुलाकात हो जाती है महीने 2 महीने में। और उसमें जैसे कि बच्चे जो इंटरनेशनल हैं, अफ्रीका के हैं या कहीं और के, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुलाकात होती है। जोड़ में उनको बुलाया जाता है। अच्छा।
جن بچوں کی آپ نے ملاقات کی اس کے بعد اور ملاقات سے پہلے ان کے اندر کیا تبدیلی آپ نے دیکھی؟ پہلے تو ان کی دینداری میں بھی اور ان کی پڑھائی میں بھی. پہلے ساتھی جب آئے تھے اسپیشلی اسٹینڈر کا معاملہ ہے کہ بچے تھے اور روم میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو پوچھا گیا ہم نماز کا کیا کرتے ہیں، کیسے آپ لوگ، پھر اس کے بعد سارے ساتھی آپس میں ملے اور پتہ چلا کہ کچھ ساتھیوں کی نماز نہیں ہو رہی، تو ساتھیوں نے فکر دلائی ایک دوسرے کو اور نماز کے لیے جگہ بھی مانگی، لیکن نماز کی جگہ نہیں مل پائی، لیکن رمضان کے لیے دیا گیا تھا تراویح کے لیے، لیکن روزہ کے لیے نماز کی جگہ نہیں مل پائی، تو ان لوگ اپنے ہی روم پہ 2-3 جماعت بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ، مطلب سب کی نماز ہو رہی ہے. اور جب آپ نے ان کی ملاقات نہیں کی تھی اس سے پہلے وہ پڑھائی میں اسکول کی پڑھائی میں کیسے چل رہے تھے اور پڑھائی کے بعد ان کا اندر آیا؟ یہ معاملہ ہونا آپ کو تو اس کا بھی اندازہ کرنے کو کہا تھا تو کہا گیا تھا تو آپ نے ادھورا کام کیا. ان کے نمبر کاٹ دینے چاہیے ہے نا، نمبر نہیں کاٹ دینے چاہیے. آپ کا کیا نام ہے؟ امان. کہاں پڑھتے ہو؟ پارول میں. آپ اردو بہت اچھی بولتے ہیں. ہاں اس لیے اتنی اچھی. گجراتی کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی. اردو کتنی اچھی بول رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ گجراتی ہوتا تو ان کہتا مجھے آلس آتی ہے. اچھی بات، شکر ہے. اچھا بھائی، اور کس نے کام شروع کیا ذرا بتاؤ جلدی جلدی. ماشاء اللہ. آ جاؤ بھائی. جی اوپر کر دیے. ہماری فینکس اسکول کی کارگزاری ہے، وہاں پہ نماز کی کوئی ترتیب نہیں تھی، تو میں نے اور میرے جو ایک ساتھی ہے اسٹوڈنٹ ہے اس نے ہمارا جو مینجمنٹ بورڈ ہے وہاں پہ جا کے مطلب بات رکھی کہ بھائی نماز کی کوئی جمعہ کے لیے وہاں پہ کوئی ترتیب نہیں تھی. تو انہوں نے پھر جو ان کے جو ڈائریکٹرس تھے ان سے مشورہ کیا، تب جا کے انہوں نے ہمیں نماز کی پرمیشن دی تھی، اور جو ان کا اسٹوڈیو تھا وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک نماز روم کر کے دے دیا. تو الحمدللہ ابھی وہاں پہ 11 سے 10 ساتھی لوگ نماز پڑھتے اسٹوڈنٹ. یہ کرنے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ نہیں ماشاء اللہ، بڑا اچھا کام ہو گیا. نماز بہت بڑا عمل ہے. اگر ایک ایمان والا نمازی نہ ہو تو اللہ کی نگاہوں میں وہ بندہ بے قیمت ہو جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کسی بندے نے ادا کر دی وہ آدمی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اللہ نے ایمان کے بعد سب سے بڑا جو پہلا فرض کیا وہ نماز کا کیا. ایمان والے پر نماز کسی حال میں معاف نہیں. اگر نزا کی حالت ہو، موت کا وقت ہو، تو بھی اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے. پڑھنی ہے. اتنا بڑا فریضہ ایمان والا چھوڑ دیتا ہے. کل قیامت کے دن اس نماز کے متعلق یہ آتا ہے کہ جس کی نماز مکمل نکل آئی اس کا ساری بات آسان ہو جائے گی، اور جس کے دین نماز میں کچا بن رہا تو وہ خطرے میں پڑ جائے. اس لیے اپنی پڑھائی کے ساتھ کسی حال میں کسی ایمان والے کی نماز نہ جائے. اس پر ماشاءاللہ توجہ دینے کو کہا تھا، آپ حضرات نے اس پر اچھی توجہ دی. بس ایک گزارش میری ہے کہ جیسے آپ اپنے مینجمنٹ کو پوچھنے گئے بہت اچھا کیا، لیکن اکثر مینجمنٹ کا یہ حل ہوتا ہے کہ ان کی اسکولوں میں اور بھی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، پھر پوچھنے جائیں اور وہ اجازت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہنگامہ کریں. یا بعض مرتبہ مینجمنٹ میں بعض لوگ اچھی سوچ کے ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی اجازت دے دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتے ہیں. تو اکثر بغیر پوچھے اگر چپ چاپ ہم کہیں کسی کونے میں شروع کر دیں تو وہ آنکھ آڑے کان کر لیتے ہیں. سمجھے بات آپ؟ سمجھے آنکھ آڑے کان کرنا مطلب نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. ہم لوگوں نے ایئرپورٹوں پر دیکھا کہ ایئرپورٹ پر پریئر روم بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سینئر کسی جگہ پر پڑھتا ہے تو آج تک کسی نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. کبھی کسی نے منع نہیں کیا. ریلوے اسٹیشن پر وہاں وہ بنا ہوا نہیں ہوتا ریلوے اسٹیشنوں پر اپنے عبادت خانے، مگر لوگ نماز پڑھتے ہیں 2-3 دن تک، تو کبھی کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر اسٹیشن ماسٹر سے تم پوچھیں گے وہ ہم یہاں پڑھیں تو کہیں گے نا مت پڑھو. پھر اگر اس کے بعد کوئی پڑھے گا تو یہ قانون کے خلاف ہوتے گا. اس لیے کوشش کرنے کی کہ اجازت کی ضرورت لینا ضروری نہ ہو تو چپ چاپ شروع کر دینے کی کوئی کونے والی جگہ پر. سمجھے بات آپ؟ کسی کونے میں کسی جگہ پر پڑھنا شروع کر دیا تو ہو جاتا ہے. کوئی بے ترتیبی کرتا ہے نا تو پرابلم. مثلا ٹرین میں 2 آدمی ہر سال سے نماز پڑھتے ہیں، جماعتیں جاتی ہے، قصر پڑھتی ہے، مختصر پڑھتی ہے، 2 کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
मगर कोई आदमी 10 की लाइन आगे पीछे एक के पीछे एक लगाए तो पूरा डिब्बा परेशान हो जाएगा, तो सारे लोग मना करें। तो उसने नमाज से मना नहीं किया, हमारी गलत तरतीब से मना किया। बात समझे नहीं समझे बात? तो गलत तरतीब नहीं, सही तरतीब से हम सलीके से करें तो कोई मना नहीं करें। हम वुजू करें, ट्रेन के डिब्बे में जो वॉशरूम होता है उसमें आदमी अंदर जाकर करता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बाहर वुजू करें, 1 किलो पानी गिरा दे और 10 आदमी 10 के 10 गिराएंगे तो पूरे डिब्बे का क्या हाल होगा? तो लोग नफरत करेंगे। अगर हम सही तरतीब से करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। समझे बताओ? तो आप माशाल्लाह पूछने की इजाजत मिल गई, अच्छी बात है ना। हमारी गुजारिश है कि जहाँ पूछने जाना जरूरी ना लगता हो तो पूछने की जरूरत इजाजत ना लें, चुपचाप अपना अमल शुरू करता है। कोई मसला पेश आए तब देख लें। समझे बात? आप अक्सर पेश आता नहीं है, तुम शुरू कर दो तो हो जाएगा। बस अगर एयरपोर्ट पर कोई पूछने जाए कि हम यहाँ नमाज पढ़े तो फौरन कहेंगे भाई यहाँ नहीं, तुम प्रेयर रूम चले जाओ। लेकिन पढ़ ली तो कोई रोकने नहीं आएगा, पता ही नहीं होता ऐसा। और आपने अपनी पढ़ाई पर क्या मेहनत की? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले के मुकाबले में ठीक हुई या मेहनत में 6 दफा हुआ? चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, और कौन है जहाँ मेहनत होती है उधर जल्दी से आ जाए? कोई स्कूल में मेहनत होती कोई अफराद कर माशाल्लाह भी हुआ। मैं MS यूनिवर्सिटी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। आपको 10 मिली, मुझे 30 मिली। पता है आपको? इन्हें 10 नेकी मिली और मुझे 30। इन्होंने क्या कहा और मैंने क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं MS यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और उसके अंदर हमारे वहाँ मुलाकात तो कभी कभी कॉलेज में जाना होता है। और अभी इस साल के अंदर ऐसा है कि हमारे फाइनल ईयर के अंदर मेरे साथ पढ़ने वाले मेरी फैकल्टी के अंदर जो मैं जिसको पहचानता हूँ उसमें तकरीबन 3 दोस्त हैं मेरे। उसकी मुलाकात की मैंने तीन दोस्त की और उनसे 6 महीने पहले से उनकी मुलाकात करी थी। और अभी ऐसा है कि वो 4 महीने के लिए क्या मुकम्मल तैयार है फाइनल ईयर के बाद। माशाल्लाह। बाकी और आपकी इन 3 के अलावा तो बहुत सारे मुसलमान होंगे। जैसा कि मेरे साथ में दूसरा कोर्स चालू है तो ज़्यादा कॉलेज जाना नहीं होता। अच्छा, बहुत अच्छी। और कोई मेहनत अपने अपनी ज़ात पर बढ़ाई हो तालीम के हिसाब से? हमारे वहाँ यानी हमारे हल्के के अंदर भी मुलाकात होती है, उसमें हमारे हल्के के अंदर 404 स्टूडेंट्स हैं और हल्के के अंदर उसमें से फाइनल ईयर वाले अभी 14 स्टूडेंट्स हैं। गए साल के अंदर तकरीबन 9 स्टूडेंट ने 40 दिन लगाए थे, उसमें से और 2 स्टूडेंट ने 4 महीने लगाए थे और 3 स्टूडेंट ने 20 दिन लगाए थे। और अभी इसमें से ऐसा है कि 14 स्टूडेंट के अंदर से 2 की मुलाकात हुई थी, उसमें से यानी तरकीब दी उनको 4 महीने के लिए फाइनल ईयर वाले, वो बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम कुछ और भाई किसी स्कूल कॉलेज में कोई मेहनत हो रही हो? जी, और कोई स्कूल कॉलेज में मेहनत हो रही हो? यहाँ का तो काम बहुत अच्छा है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में काम हो रहा है। और पारुल में तो सबसे अच्छा होता है, जोरदार काम होता है। अरे आप पारुल में हो? अच्छा, और भाई इस साल पहली बार मजलिस में आए ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जरा बताओ? पहली मरतबा आए हो यहाँ? अच्छा, 50% वो है जो पहली बार आए। आप इन बातों से समझ गए कि हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई समझ गए? कौन कौन समझे जो हम कहना चाहते हैं? जी, हमने जो बातों बच्चों से पूछी उससे कोई समझा जो हम क्या कहना चाहते हैं? जरा खड़े होकर बताओ, आप खड़े होकर जरा बताओ हम क्या आपके पीछे वाले। जी भाई, खड़े होकर जरा बताओ हम क्या कहना चाहते हैं? हमने इन सबसे बातें पूछी, आप क्या समझे? इधर आओ जरा, इधर रास्ता दो। हम इन बच्चों से जो बात हमने पूछी, इन बातों से आप क्या समझे, हम क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं यहाँ पे आज पहली बार आया तो मैं आप कहाँ पढ़ते हैं? पारुल में। ये पारुल में है ना, जानते हैं आप? उनके साथ पहले क्यों नहीं आया? मतलब मैं न्यूज़ अच्छा, कोई बात। जरा करीब करें, आप क्या
समझे इन बातों से? पहली बात कि हमें अपने आप की अपनी तालीम पे अच्छे से फोकस करना है और जो ज़रा नमाज करीब करें ना भाई, करीब करके बात करो ना। अगर कोई नमाज अच्छे से नहीं पढ़ता है उसको नमाज अच्छे से पढ़नी है, लाइक 5 वक्तों की नमाज अच्छे से पढ़नी है और जो उनके फ्रेंड्स एटसेट्रा होंगे उनको भी नमाज की दावत देनी है और अगर उनकी एकेडमिक्स में वो मतलब अच्छे से मतलब फोकस नहीं हो पाता होगा तो उनको फोकस बहुत अच्छी। ये दोनों बातें हमने क्यों करने को कही आप समझे? ये दो बातें अपने ऊपर एक मेहनत करना है और एक अपने दोस्तों पर सफर करना है। ये दो बातें क्यों कही? क्योंकि हमारा मैं आपका माइक पकड़ता हूँ, चलो आपको क्योंकि हमारा यहाँ आने का पहला मकसद ये है कि हमें एक तो एकेडमिक्स पे फोकस करना है और साथ साथ में जो मतलब नमाज एटसेट्रा भी अच्छे से गायब है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इन बच्चों की बातों से हम साथियों को ये बात समझ में आ गई। देखो ये हम दो बातें हमेशा हमारे तलबा से करते हैं। एक ये है कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम कौन है बोलो? मुसलमान हैं। हम इस्लाम पर जीना चाहते हैं और इस्लाम पर मरना चाहते हैं। बोलो सही बात गलत बात? इस्लाम पर वो आदमी जी सकता है जो इस्लाम पर मेहनत करता है। जिसकी इस्लाम पर मेहनत ना हो उसके पास से इस्लाम निकल जाता है और जिसके पास इस्लाम पर मेहनत नहीं रहती वो इस्लाम पर मर भी नहीं सकता। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बात फरमाते थे कि तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे। कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुबासून। ऐ लोगों तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे और जैसे मरोगे ऐसे ही अल्लाह के वहाँ उठाए जाओगे। हमारे बुजुर्ग थे वो कहते थे कि मुसलमान का जो दिल है, दिल वो चीज़ों को चूसता है। जैसे डलोप है, ये डलोप वो चूसता है चीज़ों को। उसको पानी में डाल दो तो क्या चूस लेगा? अरे बोलो भाई। उसको शराब में डालो वो क्या चूसेगा? चीज़। और उसको जमजम में डालो किसको चूसेगा? फिर उसको यूं निचोड़ो उसमें से क्या निकलेगा? जो चूसा है वो निकलेगा। अगर उसने पानी चूसा तो पानी निकलेगा और जमजम चूसा है तो, और शराब चूसी है तो। ऐसे लोगों के दिल चीजों को चूसते हैं। जब वो बंदा बेहोश होता है, भाई वीडियो नहीं, जब वो चीजों को चूसता है, जब वो सोता है, बेहोश होता है, अंदर जो चीज चूसी है वो बाहर आती है। ये अजीबोगरीब चीज है। देखो आप बच्चे को देखो, हम लोग वो सब नींद में सो जाते हैं ना, नींद होती है तो सोते हैं ना। तो हम जब सोते हैं हमें शऊर नहीं रहता, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको बोलने की आदत होती है, बकते हैं कुछ ना कुछ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अजीबोगरीब चीजें बकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मदरसा नहीं जाना, ये मारता है, ऐसी चीजें बकते हैं। बोला ऐसा होता है? नहीं होता। आप लोग मेडिकल के कोई स्टूडेंट हो तो आपके पेशेंट आते हैं, उनको आप लोग बेहोश करते हो, ऑपरेशन के लिए बेहोश करते हैं। तो बेहोश करते हैं तो आप उन पेशेंटों को आपने सुना होगा, पता नहीं कोई चीज़ें बकते हैं। हम लोग एक पेशेंट को देखने गए तो जवान लड़का था, वो गंदी गालियाँ बक रहा था, उसका बाप वहाँ मौजूद था। तो वो बाप कहने लगे मेरा बेटा क्या बोलता है? तो उससे जिक्र किया कि ये नहीं बोल रहा है, उसकी 24 घंटे की जिंदगी में ये चीज़ दाखिल है, इसलिए बेहोश हो रहा है कि वो चीज़ बकता है। जिसको गाने से लगा होता है वो नींद में भी गाने गा सकता है। हमारे एक साथी पढ़ते थे, वो अभी जिम्बाब्वे में है। वो ज़हीन आदमी था, 6 महीने में उसका कुरान हिफ्ज़ कर लिया। तो जब सोता तो कुरान पढ़ना शुरू कर देता, 1 पारे 2 पारे 3 पारे पढ़ जाता। वो उसको कुरान से लगाव हो गया। हमारे गोधरा शहर में, मैं गोधरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक प्रिंसिपल थे हमारे यूसुफ मामजी साहब, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनको ऑपरेशन के लिए गए, उनको आदत थी रोजाना 1 मंजिल कुरान पढ़ने की। 1 मंजिल कुरान 7 पारे पढ़ते थे रोज। प्रिंसिपल थे और 7 पारे पढ़ते थे। उनको जैसे ही लिटाया ऑपरेशन के लिए बेहोश किया, बेहोश होते ही उनके अंदर जो था वो बाहर आया और वो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, हालांकि हाफिज नहीं थे। तो ये चीज होती है कि आदमी के अंदर जो चीज है उसके बेहोश होने के साथ अंदर की चीज बाहर आती है। जैसे कि आदमी सोता है, बेहोश हो जाता है, तो ड्राइवर आदमी बकता है, आने दो जाने दो, वो बकता है, उसका कोई कसूर नहीं, उसका काम 24 घंटे उसी में रहा और वो अंदर उतर गई।
एक आदमी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बेहोश करते हैं, अंदर जो चीज गई वो बाहर आती है। जैसे नींद में अंदर की चीज जो उसने चूसी है वो बाहर आती है, बेहोशी में उसने जो चीज चूसी वो बाहर आती है। ऑपरेशन में सबसे बड़ी बेहोशी मौत है। बहुत सारे लोग मरते हैं तो 10-10 आदमी कलमा पढ़ाने बैठते हैं, लेकिन उसकी जबान पर कलमा चढ़ता नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं कोई कलमा नहीं पढ़ा रहा और कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु। क्यों? क्या बात? इसके दिल ने कलमे को चूस लिया है, इसके दिल ने कलमे को चूसा है। अभी हम लोग एक रास्ते से जा रहे थे तो बहुत सारे लोग वहां थे। क्या बात हो रही है? तो कहा फलां साहब का इंतकाल हो रहा है, नज़ा में है, मतलब आखिरी वक्त में। तो हम भी पहुंच गए, चलो भाई कलमा तलकीन करेंगे। तो 10 आदमी कलमा तलकीन कर रहे थे, यासीन पढ़ रहे थे, लेकिन वाकिल मैंने देखा ही हो रहा था। अच्छा, हम परेशान हो गए। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने बात फरमाते थे, तुम जैसा जियोगे ऐसे मरोगे। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में लिखा, ताज्जुब उस आदमी पर नहीं है जो 60 साल तक बेईमान था और बेईमान मर गया, ताज्जुब उस पर है जो 60 साल तक ईमान वाला था और बेईमान मर गया। इसलिए हर एक को एक बात कहते हैं, हम सबसे पहले कौन है बोलो? हम इस्लाम पर जीना चाहते हैं और इस्लाम पर, उसके लिए ये हमारी बचपन से लेकर 55 तक हम और जितने भी दुनिया में काम करने हैं, लेकिन अपने इस्लाम की हिफाजत के साथ। एक राय के दाने के बराबर अगर ईमान बचा कर हम इस दुनिया से गए, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। और खुदा न करे अगर ये हमारे यहाँ से रुखसत हो गया तो इससे बड़ी बुरी मौत नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा जो अमल है वो है अपने अल्लाह के सामने सर का टेक देना। उसको हम नमाज का अमल कहते हैं। नमाज का अमल हमारी जिंदगी में हमारी नमाज किसी हल में न जाए। एग्जाम हॉल में भी अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हम पर नमाज माफ नहीं है। हमें मुसल्ला रखना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है किसी हाल में भी, नज़ा की हालत में माफ नहीं है। इसलिए हमारे तलबा से हम ये बात कहते हैं कि आप लोग पढ़ने अगर जा रहे हो, ये दिल दिमाग अल्लाह का दिया हुआ है। अगर इसको अल्लाह खोलेंगे तो खुलेगा, और अगर अल्लाह ने इसको बंद कर दिया तो ये नहीं खुल सकता। ये अल्लाह की नेमत है हम पर कि अल्लाह ने हमें सेहतमंद रखा, तंदुरुस्त रखा, और अल्लाह ने हमें ये इस तरफ जाने की तालीम लेने की अल्लाह ने हमें शऊर दिया। तो हम अल्लाह को भूल न जाएं। आदमी को जब अल्लाह नेमतें देते हैं और उसकी नज़र अल्लाह पर नहीं होती तो उसकी नज़र अपने ऊपर आ जाती है, ये मैंने किया है, ये मेरी अक्ल है, ये मेरी समझ है। हारून जो था अल्लाह ने उसको बहुत माल दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उसको कहो कि अल्लाह ने तुझे माल दिया है, उससे तू लोगों पर एहसान कर। तो उसके जुमले क्या थे पता है? कि तुम ये कहते हो अल्लाह ने दिया है, ये तो मैंने अपनी सूझबूझ से कमाया है। उसके बोल बदल गए। आज दुनिया में बहुत सारे बच्चों के बोल बदल जाते, जरा बड़े होते हैं, मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया है। और भाई तू जिस घर में रहता है वो किसने बनाया है? तो आज तक ये 25 साल का हो गया, तेरा तुझे पाला पोसा, तेरी टट्टी के पैम्पर कौन लाया था? ये सारे तेरे अब्बा के पैसों से आए हैं, ये सारे तेरे अब्बा के पैसों। तो ये पूछता है कि मेरे अब्बा ने क्या किया है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, उसके दिमाग का खुमार बोल रहा है, उसके दिमाग का नशा बोल रहा है। तो ये नशा चढ़ता है, जैसे लोगों को शुगर का नशा चढ़ता है, शराब का नशा वो उतर जाता है, लेकिन गलत नशे चढ़ जाए वो उतरते नहीं है। तो गलत नशे न चढ़ें, इसके लिए हमारे बच्चों से हम कहते हैं अपने तालीम के दरमियान में अपने अल्लाह की नेमतों का ध्यान करें। मेरा अल्लाह मैं जिस पोजीशन में हूँ, अगर मेरे दिमाग को सारा कमजोर कर रहे हैं तो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। आदमी पागल हो जाता है तो अभी वो बड़ी बहकी बातें करने वाला अगर थोड़ा पागल हो जाए तो पायजामा कंधे पर डालकर नाली में पड़ा हुआ होता है। हाँ, ये जितने पागल है उसमें कुछ पहले से पागल है, कुछ बाद में पागल बनते हैं। तो उसको देखकर हम इबारत ले सकते हैं कि जैसे ये हुआ ऐसे मैं भी हो सकता हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, मेरे रब का शुक्र है। कितने माजूर है हॉस्पिटलों में, वो कुछ नहीं कर पाते, मुझे मेरे अल्लाह ने सेहतमंद बनाया तो मेरे रब का एहसान है। तो मैं अपनी सेहत को मेरे रब को नाराज करने में इस्तेमाल न करूँ। आदमी को एक बीमारी लग जाती है, उस बीमारी के इलाज में लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ने उन बीमारियों से बचा कर रखा। ये नेमतों का ध्यान करके अपने रब के फरमाबरदार हो रहे हैं। आप लोगों को हम खास तौर से इसलिए बुलाते हैं कि आपके साथ दो चीजें लगी हुई है। आपको खास तौर से इसलिए हम बुलाते हैं कि आपके साथ दो चीजें लगी है। एक, आप जवानी की उम्र में हैं और जवानी को कहते हैं दीवानी। जवानी कैसी होती है बोलो? अश्शबाबु शअबतुम मिनल जुनून। जवानी दीवानी होती है।
सारे अब देखना इसी उम्र में सब टेढ़े टेढ़े सब होता है, किसी के बाल टेढ़े हो गए, किसी का पायजामा ऊंचा, किसी का नीचा, किसी के पैंट फटी हुई, किसी के ठेले लगे हुए, वो सारी नाटक जो होगी वो इसी उम्र में होती है। आपने देखा है, न इससे नीचे होता है न इसके ऊपर की उम्र में होता है, सब इसी उम्र में होता है। हाँ, और ये तो अभी इतना हुआ है, दूसरे मुल्कों में जाओ तो नंगे रहना भी इसी उम्र में होता है। वो लोग कर रहे हैं, लोग जिसमें अपना उसको वो समझता है कि मेरी इसमें कुछ पर्सनालिटी, मेरी कुछ वो बनेगी, वो सब हरकतें कर रहे हैं दुनिया में। ऐसी ऐसी अजीब, तो ये समझता है कि चलते चलते खाने में अच्छा लगेगा तो दौड़ते दौड़ते खाता है, दौड़ते दौड़ते पीते हैं, स्टाइल होती है। ऐसा होता है दुनिया में। हम लोग अभी एक जगह थे न्यूयॉर्क में, तो वहां से ट्रेन में जा रहे थे, तो सुबह सुबह का वक्त था, तो हमने देखा कि कोई पैसेंजर के हाथ में कुछ है, कोई, मैंने कहा वहाँ मुंह धोया है और सब निकले हुए हैं, और कोई नाश्ता खड़े खड़े कर रहा है, कोई पी रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हम कनाडा एम्बेसी में जा रहे थे किसी काम से, मैं और मेरा रहबर दो ही बातें कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी का है नहीं तो क्या बात करेंगे। तो दुनिया में ये चीजें इससे भी जो हम दुनिया करते हैं उससे भी आगे लोग दुनिया में कर रहे हैं। हमारे बच्चे इन बीमारियों में मुब्तला न हो जाएं, इसके लिए आप हजरात को ये कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुम उन चीजों में लगे रहो जिन चीजों में लगने से तुम इन जरासीम से बच जाओ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर वो जरासीम हमारे बच्चों को लग गए तो ये अपनी तालीम में भी कच्चे पड़ जाएंगे और अपने अल्लाह के भी बागी बन जाएंगे। और ईमान वाला अगर अल्लाह का बागी बन गया और अल्लाह का नाफरमान बन गया और अल्लाह से कट गया, तो गैर ईमान वाला और ईमान वाले में फर्क है। गैर ईमान वाले के लिए दुनिया जन्नत है, उसका सब निभ जाएगा, लेकिन ईमान वाला अगर गफलत करेगा और गलत चीजें करेगा, वो सारी बातें उसकी नोट होती है, सारी बातें नोट, उसके फरिश्ते लिखते हैं और उसकी सारी हरकतों का जवाब मिलने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तुम्हारे अच्छे का बदला मिलेगा, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिह, जो अच्छा करेगा उसको उसके अच्छे का बदला मिलेगा, और जिसमें लग़ज़िशें की होगी, चुकें की होगी, उसकी चुकों को उसको भुगतना है, उसकी चुकों को उसको वो तो भूल जाएगा करके, लेकिन फरिश्तों ने उसको याद रखा है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने अपने बाप की नाफरमानी, तो अब वो तो भूल गया नाफरमानी करके, लेकिन किताबों में आता है इसको बाप बनने का इंतजार करो, जिस दिन वो बाप बनेगा उस दिन उसकी वो सब गिन गिन कर दिया जाएगा जो उसने अपने बाप के साथ किया है। तो हमारी सारी चीजें वापस लौट कर आती है, मुकाफाते अमल। इस दुनिया में सबका किया हुआ कर्ज है, कर्ज लौटाया जाता है, जो किया है वो वापस लौटा दिया जाएगा। हमारे बच्चों का कर्जा न चढ़े इन चीजों का, इसकी सबसे पहले फिक्र होती है कि हमारे बच्चे अपने घर के नाफरमानियों के साथ न हो जाएं। इसके लिए आप हज़रात को तवज्जो दिलाते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ तबलीग की जो मेहनत है, तबलीग की मेहनत, वो बच्चों को इस्लाम और ईमान को ताज़ा रखने की और ताज़ा करने की मेहनत है। कौन सी मेहनत है बोलो? जैसे अभी आप लोगों को हम ताज़ा कर रहे हैं, एक तरह की बात करके ताजगी भर रहे हैं। यहाँ मजलिस में आप जितनी भी मजलिसों में बैठोगे यही बात, क्योंकि ईमान के मुतालिक क्यों आता है कि ईमान मैला हो जाता है, ऐसे मैला हो जाता है जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं। जब कपड़े मैले हो जाते हैं तो उसमें से बदबू आती है, ऐसे जब ईमान वाले का ईमान मैला हो जाए तो हुजूर ने उसकी मिसाल दी कपड़ों से, कि कपड़े की तरह मैला हो जाता है, और जैसे कपड़े मैले हो जाएं उसमें बदबू आती है, ऐसे ईमान वाला जब मैला हो जाता है ईमान के हिसाब से उसके जिस्म से बदबू आती है। वो बदबू क्या होती है? तो उसकी आंखों से गंदगी देखना शुरू करता है, उसके कान गंदे सुनने को पसंद करते हैं, उसकी जबान गंदा बोलना पसंद करती है, उसकी आंखें गंदा देखने को पसंद करती हैं। ये सारी निशानियां हैं अंदर के गंदा होने की बात, कि इसका दीन गंदा हो चुका है। अगर ये गंदगी को दूर नहीं करता, ये गंदगी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते इतना गंदा हो जाएगा, गंदगी में रच बस जाएगा, अंदर गंदगी पेवस्त हो जाएगी। फिर वो जिस ओहदे पर भी जाएगा गंदगी गंदगी करेगा, अपने घर में भी रहकर गंदगी करेगा, अपने ऑफिसों में भी रहकर गंदगी करेगा, और इसकी गंदगी भुलाई नहीं जाएगी, इसकी गंदगियों के बदले दिए जाएंगे। फिर अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, लेकिन ये चैन का जी नहीं सकेगा, ये चैन का जी नहीं सकेगा। आज आप दुनिया में देखो कि लोगों से मिलते हैं ना, तो लोगों का चैन का जीना खत्म हो गया है। पता नहीं कैसी कैसी मुश्किलात में, यूं बड़ी बिल्डिंग वाले हैं, बड़ी जॉब वाले हैं, बड़ी सैलरी वाले हैं और बड़ी आमदनी वाले हैं, लेकिन जिंदगी का चैन खत्म हो गया। जिंदगी का चैन, किसी के बीवी के रास्ते का चैन खत्म, किसी के बच्चों के रास्तों का चैन खत्म, किसी का कोई, ऐसे दुखों में लोग जी रहे हैं कि न कह सके न सह सके। हाँ, ऐसे ऐसे दुखों में लोग जी रहे हैं।
तो हमारे बच्चों को ये दुख न उठाने पड़े और ये हालात से ये महफूज हो जाएं, इसके लिए इनको यहाँ जमा करते हैं कि आपके साथ एक तो जवानी लगी है, जो जवानी की जिंदगी अक्सर इन चीज़ों की तरफ ले जाती है। दूसरा, आप जिस जगह पर पढ़ाई कर रहे हो वो कॉलेज और स्कूलों का माहौल वो इन्हीं जराइम और गुनाहों के करने के अड्डे बने हुए हैं। अभी मुझे एक दोस्त मिला, हमारा PhD कर रहा है हैदराबाद में, वो कहने लगा मौलवी साहब पहले हमारी हॉस्टल अलग होती थी लड़के और लड़कियों की, अभी भी अलग है, मगर हमारे वहाँ लड़के को लड़की के हॉस्टल में और लड़कियों को लड़कों के हॉस्टल में आने जाने की इजाजत है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? तो यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि बच्चे जो चाहते हैं वो चीज़ें उनको दी जाए ताकि बच्चों का रुझान उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ ज्यादा हो। अब ये बच्चे अगर इस तरह की हरकत कर गए तो फिर ये गंदा माशरा इनको गंदगी में मुब्तला हुए बगैर नहीं रहने देगा। अब एक बच्चा अगर इस गंदगी में मुब्तला हुआ तो क्या होगा? किताबों में आता है, हदीस में, ऐफू ताइफू निसाकुम, ऐ नौजवान, ऐ लोगों, तुम अपने आप को पाक दामन रखो, हम तुम्हारी औरतों को पाक दामन रखेंगे। इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या होगा? अगर तुम गंदे हो गए तो ये गंदगी तुम्हारे घर की मुस्तरात में आएगी। जिसके साथ हम हमारी गंदगी में अगर हम लगे हैं तो किसी की बेटी है तो अल्लाह की बंदी है, हमने किसी की इज्जत पर हाथ मारा है तो कल अल्लाह मेरी बेटी पर इज्जत पर हाथ मारने वाला पैदा करेगा। अगर मेरी बेटी पर किसी ने हाथ नहीं मारा, मेरी बहन पर कोई मारने वाला, या मेरी बीवी के ऊपर हाथ मारने वाला, या मेरे घर की किसी लड़की पर हाथ मारने वाला पैदा हो जाएगा। ऐफू ताइफू निसाकुम, तुम पाक दामन रहो, हम तुम्हारी लड़कियों को पाक, हम तुम्हारी औरतों को पाक दामन रखेंगे। ये दुनिया में अटकल बच्चों कुछ नहीं होता, सब लोगों के किए हुए का बदला है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लोगों से कहो कि तुम्हारे साथ जो पेश आता है वो तुम्हारे करतूतों की सजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो यकीन मानो ये तुम्हारे हाथों के करतूतों की सजा है। ये चीजों में हमारा ये मजमा मुब्तला ना हो जाए, इसके लिए इनसे कहते हैं कि अपनी स्कूल में आप लोग पढ़ने गए हो तो आप अपने आप को अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ पढ़ाओ। अक्सर इस माहौल में बच्चे ये समझते हैं कि भाई इसमें मॉडर्न बनकर रहना है, तो मॉडर्न बनकर रहने के लिए वो अल्लाह का बाबी बन जाता है, नाफरमान, और एक गैर ईमान वाला जैसे जीता है ऐसे एक ईमान वाला भी जीता है, तो फिर ये अल्लाह की निगाहों से गिर जाता है और फिर इसके अंदर से इस्लाम और कुफ्र का फर्क खत्म हो जाता है। हम लोग अभी टोरंटो में थे और टोरंटो में हमें कुछ साथी कहने लगे जो यहाँ कॉलेज में पढ़कर इसी तरह मेहनत करके गए जैसे बच्चे हैं, तो हमारे साथ हमारे हिंदुस्तान से मुसलमानों की बच्चे यहाँ पढ़ने आती है, उन्हें कोई फर्क नहीं होता कि गैर ईमान वाले के साथ हॉस्टल में रहे, दो लड़कियां दो लड़के आराम से गैर ईमान वालों के साथ रहते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम और कुफ्र का फर्क जिंदगी से खत्म हो जाता है, ये गिरते गिरते यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक कि गैर ईमान वाले के साथ अपनी जिंदगी गुजारने को ऐप की चीज नहीं समझा जाता, कि इतना गिरते गिरते आदमी नीचे गिर जाता है। फिर उनका अंजाम क्या होगा? ठीक है, दुनिया की जिंदगी तो किसी की भी पूरी हो जाएगी, पैसे तो कैसे भी मिल जाते हैं, पैसे अगर मुकद्दर में है तो सब। हम लोग रायबंड पाकिस्तान जाते हैं, रायबंड में इज्तिमा होता है बड़ा, तो वहाँ एक मुखन्नस हिजड़ा था, हिजड़ा पैसे कैसे मिलते हैं? वो जमात में जाकर आया 7 महीने, तो हम लोगों की मुलाकात हो गई, तो मकामी साथी उनको मुलाकात में लेकर आए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हाल है तुम्हारा? कहा जी मैं मुखन्नस हिजड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत लड़का हिजड़ा बन गया, उसने अपनी पेशाब की जगह भी कटवा दी और उसने अपने पूरी शक्ल उनकी तरह बनवा दी। अच्छी वो भली बात। उसने अपनी कर्जदारी सुनाई कि हम लोग एक रात के 5 लाख रुपए लेते हैं, 5 लाख रुपए। हमारी पूरी टीम उनके प्रोग्रामों में नाचती है, डांस करती है, एक रात के 5-5 लाख रुपए। मैं ऐसे लोगों के हाथ चढ़ गया, तो अब हमें 5-5 लाख रुपए रात के मिल रहे हैं। लेकिन फलां साहब जो उनके साथ थे वो मुझे दोस्ती की, उन्होंने मुझे तबलीग में लगा दिया, तो मैंने तौबा की और अब यहाँ आया। तो मेरा बॉस जो है वो कहता है तूने क्या कर लिया, पहले पैसे कमा ले फिर जो करना वो करना। तो मैंने कहा हमारे तो औलाद होती नहीं है, तो पैसे कमा कर करूंगा क्या, किसको दूंगा? और फिर उसने कहा कि अगर उस हल में मर गया तो मेरा क्या होगा? तो पैसे तो नाचने वालों को भी मिल जाते हैं, कपड़े उतारने वालों को भी पैसे मिल जाते हैं, पैसे बड़ी चीज नहीं है, असल है जरूरतों का पूरा होना और सुकून का जीना। देखो कितने कम तनख्वाहों वाले सुकून का जी रहे हैं। ये इन चीजों का एहसास, चैन लूट जाए तो क्या? हम लोग एक मरतबा रियूनियन गए, फ्रांस कॉलोनी का, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो हम लोग उनके इलाज के लिए वहाँ गए। तो जब
पैसे देने लगे, वहाँ यूरो चलते, तो हम लोग यूरो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी पैसे नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या मसला है? तो कहने लगे मेरे लिए दुआ कर दो, रोने लगे। आपको क्या तकलीफ है? ये मेरी बेटी बैठी है, वो मेरी बेटी यूँ कहती है कि आप इस कमरे को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, अब मैं इस कमरे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगा, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा। अब सब लुट गया उसका, बड़ा डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक, लेकिन बेटी मुखालिफ हो गई। हमारे मौलाना उमर साहब फरमाते थे कि जब अल्लाह का निज़ाम उल्टा चलता है तो आदमी घर होते हुए बेघर हो जाता है, बीवी के होते हुए बगैर बीवी का हो जाता है, और औलाद के होते हुए बगैर औलाद का हो जाता है। ये दुनिया ने देखा है। हम उन हालात में ना घिर जाएं, इसके लिए ये समझाते हैं कि हम अपने अल्लाह को नाराज करके ना पढ़ाई करें। अगर हमारा अल्लाह नाराज हो गया तो हमारा कुछ नहीं होगा, और अल्लाह नाराज होते हैं उसकी नाफरमानियों से, उसके किए करने के जो अमल दिए गए हैं उसको छोड़ने से। उसमें सबसे पहला अमल नमाज का है। जैसे इन बच्चों ने सुनाया, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ अपनी नमाजों का एहतमाम करें। हम में से किसी की किसी हाल में नमाज न जाए। एक तो नमाजों का एहतमाम, दूसरा स्कूल और कॉलेज में हम अपने दोस्त अच्छे बनाएं। किताबों में आता है दोस्त अपने दोस्त के दीन पर चला जाता है। जिसका जैसा दोस्त होगा होते होते वो भी ऐसा ही हो जाएगा। आप देखो अखबारों में रोजाना पढ़ते हो ना, दोस्ती अंधा कर देती है, दुश्मनी अंधा कर देती है और दोस्ती अंधी होती है। दुश्मनी अंधा कर देती और दोस्ती अंधी होती है। ऐसी दोस्ती अंधी हो जाती है कि आदमी सब चीजों को भूल जाता है। रोजाना अखबार में आता है फला लड़का फला जगह चला गया लड़की के साथ, फला लड़की, क्या हुआ? दोस्ती ने ऐसा अंधा कर दिया कि माँ बाप को छोड़ दिया। जिस माँ ने दूध पिलाया है उस माँ को छोड़ दिया एक लड़के की मोहब्बत में, अपने दीन को छोड़ दिया एक लड़के की दोस्ती अंधी हो गई। तो दोस्ती अंधी होती है, इसलिए हम अच्छे दोस्त बनाएं। किताबों में आता है अच्छे दोस्त दुनिया में भी काम आएंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम गलत रुख पर जाएंगे वो हमें संभाल लेंगे और आखिरत में भी काम आएंगे। किताबों में आता है जब अच्छे दोस्त जन्नत में गए होंगे तो उनको अपने दोस्त नजर नहीं आएंगे। वो अल्लाह से पूछेंगे कि हमारे वो दोस्त नहीं है, कहाँ हैं? तो वो दोस्त कहेंगे वो सब जहन्नम में गए। तो अच्छे दोस्त कहेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगेगा उनके बगैर जन्नत में, उनका हमारे साथ भेज दीजिए, भाई वो तो जहन्नम में गए, हम नहीं जाएंगे उनके बगैर। अल्लाह कहेंगे अच्छा जाओ उनको जहन्नम में से निकाल लाओ तुम्हारे दोस्तों को। तो वो जाएंगे तो उनके लिए जहन्नम आग नहीं होगी, बगीचा हो जाएगा जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बाग, और अपने दोस्तों को उड़ा उड़ा कर सबको लेकर जाएंगे अपने साथ। तो वो बेईमान कहेंगे काश के लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि मैं फलां को दोस्त न बनाता, काश के मैंने उसको दोस्त न बनाया होता, इनको दोस्त बनाया होता। तो वहाँ ये गुजारिश हम करते हैं कि भाई हमारा पूरा ये मजमा अच्छे दोस्तों को दोस्त बनाए, और अच्छे दोस्त ये हमारी मस्जिद के अमाल करने वाले हैं, वो दोस्त हैं, और अच्छे माहौल में वहाँ रहें। अच्छे माहौल का मतलब अपनी नमाजों का एहतमाम करें। हम ईमान और इस्लाम वाले हैं, रोजाना 2-5 मिनट इस्लाम और ईमान की बात हम अपनी स्कूल हॉस्टल में सुने। इसके लिए जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टलों में तालीम होती है, हम दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ की अल्लाह भला की बातें सुनते हैं। मैं मुसलमान हूँ, 2-5 मिनट तो अल्लाह रसूल की बात सुनूं कम से कम। 24 घंटे में अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनूंगा फिर मैं कैसा हो जाऊंगा? तो तीसरा काम, रोजाना में 2-5 मिनट अल्लाह रसूल की बात सुनूं। चौथा काम, अपने इस्लाम और दीन की हिफाजत के लिए हफ्ते में एक मरतबा अपने बिल्डिंग में गश्त होता है। वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं गश्त करें, और सारे बच्चों को जमा करके हफ्ते में एक मरतबा अल्लाह रसूल की बात सुनाए, आधा घंटा 15 मिनट हफ्ते में एक मरतबा। एक हफ्ते के कितने घंटे होते हैं? अरे भाई बोलो भाई, 168 घंटे। 168 घंटों में से 15 मिनट हम गश्त करके अल्लाह रसूल की बात हम आपस में मुज़ाकरा करें, ताकि ये सब चीजों को ताजगी आ जाए। इसको गश्त का अमल कहते हैं। और पांचवा काम, हम कभी कभी छोटी बहुत जमात में जाया करें। आप पढ़ने आए हो तो आप पढ़ो, उसमें कमजोरी ना करो, लेकिन छुट्टी का जो दिन हो, अगर 3 दिन आपको छुट्टी के मिल जाए महीने में तो 3 दिन जमात में जाओ। 3 दिन नहीं मिलते, सैटरडे संडे 2 दिन मिलते हैं, 2 दिन जमात में जाओ। और नहीं मिलते, 1 दिन छुट्टी मिलते है तो 1 दिन जाओ। उससे तुम्हारे अंदर ताजगी आ जाएगी। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो ना, ऐसे 24 घंटे जमात में जाने से तुम ताजा दम हो जाओगे और तुम्हारा ईमान और इस्लाम इस गफलत के माहौल में ताजगी हो जाएगी। ये कितने काम हो गए बोलो भाई? एक, रोजाना नमाज किसी हाल में हमारी न छूटे। दूसरा, हम मुसलमान हैं तो थोड़ी देर अल्लाह रसूल की अपनी मस्जिद में तालीम में, अपने हॉस्टल की तालीम में बैठे। जो बच्चे घर आ जाते हैं अपनी मस्जिद की तालीम में बैठे। तीसरा काम, अरे बोलो भाई, तीसरा काम, हम हफ्ते में एक मरतबा अल्लाह रसूल की बात सुने।
जो बच्चे घर आ जाते हैं वो मोहल्ले के गेस्ट में बैठे हैं, जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं वो गश्त करके वहाँ बच्चों को जमा करें। और चौथा काम, महीने में 3 दिन जाओ छुट्टी हो तो, न हो तो 2 दिन जाओ, 2 दिन की छुट्टी नहीं 24 घंटे की 24 घंटे, इससे तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। और 5वां काम है जो आपकी अपनी फिक्र के साथ दूसरे मुसलमानों की फिक्र करो, क्योंकि हम ईमान वाले हैं और हर ईमान वाला हमारा क्या है, बोलो भाई। अरे बोलो भाई, भाई है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करे जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। आपकी हॉस्टल में, आपकी बिल्डिंगों में कई मुसलमान होंगे, बेचारों का कोई खैरियत पूछने वाला नहीं है। ये तो आप मुख्तलिफ स्कूलों के चंद बच्चे यहाँ आए हो, आपकी स्कूलों में और बहुत सारे बच्चे होंगे, वो इसी गफलत के माहौल में है, गंदे माहौल में है, गुनाहों के माहौल में है। वो मेरा भाई है, अगर वो इस हाल में जी रहा है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सच बताओ आप, उसकी जगह पर अगर मेरा खून शरीक भाई अगर उस गलत जिंदगी में होता तो क्या हम उससे राजी हो जाते कि वो गलत जिंदगी गुजारे, उस पर हम राजी होते? तो जैसे हम अपने सगे भाई के लिए राजी नहीं है, हमारे ईमान वाले भाइयों के लिए भी हम राजी नहीं है। उसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं तुम पढ़ाई के लिए आए हो तो 23.5 घंटे, 24 घंटे पढ़ाई को फोकस करो, पढ़ाई में तवज्जो दो, अच्छे से अच्छी आपकी पढ़ाइयों को मेहनत करो, इसलिए कि आपको अल्लाह ने पढ़ने के लिए मुंतखब किया है। हमें अच्छे अफराद की जरूरत है, सारे शोबों में अच्छे ईमानदार अमानतदार लोगों की जरूरत है। अगर आप अच्छी पढ़ाई पढ़कर जाओगे तो ऊपर के दर्जों में जाओगे और वहां जाकर अच्छे इंसान बनकर उम्मत के अच्छे खिदमत गुजार बनोगे और अच्छे दीन के तर्जुमान बन जाओगे। वहां रहोगे तो आपको लोग पहचानेंगे, मुसलमान अगर कोई मॉडल देखना है ये है, मुसलमान का कोई मॉडल देखना है तो ये है। लोग आपको मिसाल में पेश करेंगे कि ये है इस्लाम वाली जिंदगी। तो आप 23.5 घंटे, 24 घंटे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और 15 मिनट अपने ईमान वालों के भाइयों की फिक्र में लगाओ। आपके स्कूल हॉस्टल में जो ईमान वाले हैं मुसलमान, उनकी मुलाकात करो। जो आपके हॉस्टल और स्कूल में मुसलमान है उनकी फिक्र करो, वो हमारे भाई है। उसके लिए क्या करो, जैसे अभी भाई ने सुनाया था, हम 2-2 की जोड़ी बन जाते हैं और अपनी बिल्डिंग में जितने मुसलमान बच्चे हैं उसको दोस्ती करो उनसे। मसलन स्कूल शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले हम चले गए, जो मुसलमान मिला उससे खैरियत पूछी, कोई खैरियत से हो, तबीयत ठीक है, यूं करके उससे करीब किया, दोस्ती लगाई। फिर उसके बाद उसके आगे का काम हमने कर लिया। या तो रिसेस में जब तुम्हें जो मिलती है छुट्टी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, उसमें 2-2 की जोड़ी बना दो। या छुट्टी के बाद वापसी होती हो, 2-2 की जोड़ी बना दो। उसमें आपको हीरे मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे। ये बच्चा ये पढ़ रहा है, फला पढ़ रहा है, उससे आप दोस्ती लगाओ, उसको दोस्ती करके करीब। अगर दोस्ती करके तुमने उसको करीब किया तो वो आपसे दोस्ती सबसे पहले होती है। अगर वो करीब हो गया फिर आपकी बात वो जरूर सुनेगा। इसलिए इन बच्चों से हम दोस्ती लगाएं। आप दुनिया में देखें पता नहीं कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो स्कूलों के रास्ते से दीन पर आए हैं। ये तुम्हारे शहर के अमीर साहब हैं, शाहिब साहब वगैरह, ये सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पहले जमाने में अक्सर जिलों के जिम्मेदार ये सब अंग्रेजी पढ़े हुए बच्चे होते थे। आपके यहाँ देखो, फिर हमारे भरूच जिले में अक्सर मास्टर लोग तबलीग का काम करते हैं। हमारा गोधरा जिला है, अभी भी उसके प्रोफेसर साहब आए हुए हैं हमारे, वो भी स्कूल कॉलेज में साइंस पढ़ाते थे, वो हमारे पूरे जिले के जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से अक्सर स्कूलों में पढ़ा हुआ तबका दीन की मेहनत में लगा हुआ होता है। बहुत बड़ा मजमा संभल गया स्कूलों में और वो दीन की अच्छी खिदमत करने वाला बन गया। तो हम स्कूलों की मेहनत को मामूली चीज न समझें, उसमें आपको बड़े बड़े अच्छे साथी मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, अभी अगर उनका मिजाज दीनी बन गया, वो जिस जगह पर भी जाएंगे अपनी दीनदारी के साथ जाएंगे। हम लोग वहाँ गए टोरंटो में, हमको बच्चे मिले, वो कहने लगे मौलवी साहब हम लोग यहाँ इतने बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज में वहाँ लगे हुए थे, यहाँ भी अल्लाह का फजल है, इतना गंदा माहौल, उसमें वो बच्चे महफूज हैं। बल्कि अभी इस मतलब हमको सुनाने लगे कि हमने इस रमजान में 600 बच्चे हम लोग हैं मुसलमान, सब एक साथ इफ्तारी करते हैं और एक साथ सहरी करते हैं। मैं हैरान हो गया कि वहाँ टोरंटो में 600 बच्चे खाने पीने का निजाम करें, क्या मामूली बात। वो यहाँ तरतीब लेकर गए यहाँ तक, और सब वहाँ की गंदी जिंदगी से महफूज हो गए। फिर अभी कहने लगे कि हम कोशिश में है कि हमारी वो बच्चियाँ जो इक्का दुक्का रहती है या गैर ईमान वालों के साथ रहती है, हमारी कोशिश है कि उनको उस माहौल से निकाल कर एक उनका अलग एक साथ वो रहना शुरू करें, उसकी हम फिक्र कर रहे हैं। अभी उसका मैसेज आया कि दिल्ली हरियाणा का एक बच्चा आया है, वो गैरों के साथ रहता है, उसको बहुत हमने मेहनत की और उसको अपने साथ 3 दिन हम ले गए हैं और अब आगे वो हमारे माहौल में रहने लगे, उसकी फिक्र। तो अंदाजा ये हुआ कि यहाँ पढ़े हुए बच्चे
उन मुल्कों में गए हैं, उन मुल्कों में जाकर संभले हुए हैं, वहाँ की फिजा ने उनको पता नहीं, और अपनी अच्छी आला तालीम के लिए उन मुल्कों में गए, बल्कि इज्तिमा में ऐसे आते हैं जैसे आप लोग आए हो, सारी खिदमत वो लोग करते हैं। न्यूयॉर्क के इज्तिमा में 7-10 हज़ार का मजमा था, वो स्कूल कॉलेज के बच्चे सारी खिदमत कर रहे थे, और टोरंटो के इज्तिमा में सारे स्टूडेंट्स, यूरोप के इज्तिमा में सारे स्टूडेंट्स खिदमत कर रहे थे कि वो इस माहौल से जाकर उन माहौल में संभले हुए हैं, महफूज हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी महफूज हो जाओ, और हमारी तो तमन्ना ये है कि अल्लाह आपको दुनिया का भी बड़ा बना दे और आपको अल्लाह आखिरत का भी बड़ा बना दे। ये उसके असबाब हैं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि हमने गुज़िश्ता भी आपको ये गुजारिश करके यहाँ से भेजा था, इस साल भी आपको दोबारा हम गुजारिश कर रहे हैं 2 चीज़ों के करने की, एक अपनी ज़ात पर मेहनत करने की और एक अपने ईमान वाले भाइयों पर मेहनत करने की। अपनी ज़ात पर मेहनत ये करना है कि हम ईमान वाले हैं, हम इस्लाम पर जीना चाहते हैं और इस्लाम पर मरना चाहते हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ उन कामों में लगूं जिससे मेरा दीन, ईमान और इस्लाम की हिफाजत हो जाए, और हर उस काम से बचने की कोशिश करूं जिससे आदमी का ईमान, दीन, इस्लाम बर्बाद होता है। उसमें सबसे बड़ा अमल नमाज है, हमारी नमाज किसी हाल में न जाए। दूसरा, में रोजाना कुछ ना कुछ ईमान और इस्लाम की बातें, ये फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात की किताबें हैं, अपने हॉस्टलों में हम सुने, जो बच्चे घर आ जाते हैं वो घर में सुने। तीसरी बात, हम रोजाना हफ्ते में 1 मरतबा गश्त करके अपने हॉस्टल में जो ईमान वाले हैं उनकी फिक्र करें, वो हमारे भाई हैं, गश्त करके उनके ऊपर मेहनत थोड़ी कर लें। चौथी काम, महीने में 1 मरतबा अल्लाह हिम्मत दे 3 दिन जाओ, नहीं 2 दिन जाओ, नहीं तो 24 घंटे जमात में जाओ, ये मेहनत कर लो, और पढ़ाई में तवज्जो दो। ईमान वाला अच्छे से अच्छा दीन का तर्जुमान बन सकता है, इस्लाम का नुमाइंदा बन सकता है। आप ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचोगे कि जहां अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते, अगर आप अच्छे बने हुए हो उन जगह पर जाकर अच्छे इस्लाम की खिदमत करोगे, अच्छे इस्लाम का तारुफ करवाने वाले बनोगे। लेकिन वो उस वक्त होगा जब तुम पढ़ाई करके ऊपर गए होंगे। इसलिए ईमान वाला कच्चा ना पढ़े, अपनी पढ़ाई में मजबूत आपकी मेहनत हो। और आपके हॉस्टल में या आपकी स्कूल में कोई बच्चा कमजोर पढ़ता हो, उसकी फिक्र हमें करनी है कि उसकी तालीम में वो कच्चा ना पढ़े। जब आप मुलाकातों में जाओ तो उसकी दीन की भी उसको फिक्र दिलाओ और उसकी तालीम में तवज्जो देने की भी फिक्र उसको दिलाओ कि भाई हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सब बच्चे अगर इसकी फिक्र ले लोगे ना, तो इंशाल्लाह आइंदा सालों में एक अच्छे मजमुआ अल्लाह के दीन के अच्छे पोस्टों पर जब आप जाओगे ना, तो अच्छे दीन के नुमाइंदे, अच्छे दीन के काम करने वाले वहाँ पहुँचेंगे। करोगे इंशाल्लाह। आइंदा साल हम आपकी कर्जदारी पूछेंगे किसने किसने शुरू किया, तो कर्जदारी सुनाओगे कि हमने शुरू किया, कौन कर्जदारी सुनाएगा, सब ये सब चीजों की कर्जदारी। और आखिर में जब तुम्हारी छुट्टियां हो तो छुट्टियों को बर्बाद ना करो। बड़ी वैकेशन हो 40 दिन के तो 40 दिन जमात में चले जाओ। वक्त तो गुजरने वाली चीज है, अच्छे कामों में गुजारोगे तो अच्छी जगह गुजर जाएगा, वरना कहीं ना कहीं तो गुजरना ही है। अगर 40 दिन की छुट्टी नहीं, 20 दिन की तो 20 दिन जाओ, 10 दिन छुट्टी है 10 दिन जाओ। दौरान तालीम जितनी छुट्टियां हो उन छुट्टियों में जमातों में जाओ। और जब तुम्हारी तालीम पूरी हो जाए, फाइनल ईयर पूरी हो जाए, तो सबसे पहले 4 महीने लगा लो ताकि तुम पक्के थक्के हो जाओ। कैसे हो जाओ बोलो, वरना आदमी बिक जाता है, पैसों में बिक जाता है, चाय की प्याली में बिक जाता है, होता है रिश्वत लेता है, रिश्वत हराम की ग़िज़ा खाता है, हराम की ग़िज़ा खाता है, वो बच नहीं पाता। दौलत, औरत, ऐसी चीजें आदमी को उससे बिक जाता, खरीद लिया जाता है। इसलिए हम बिकाऊ माल नहीं है, हम अपने अल्लाह के वफादार हैं और अल्लाह के बंदों के साथ ये अच्छे रहेंगे। उसके लिए हमारा ईमान बनना और अंदर अल्लाह के ऊपर एतमाद, ये अल्लाह के रास्तों में जाना हमारे अंदर इन चीज़ों की पुख्तगी लाता है। इसलिए जितने भी फारिग होते हैं वो ज़रूर से पढ़ाई के बाद 4 महीने लगाएं, फिर अपनी नौकरी शुरू करें, फिर जैसे जैसे वैकेशन हो उनमें छुट्टियों में अपने चिल्ले लगाते रहें, तो इंशाल्लाह ये दुनिया की गंदगियों के लगने से तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए सब नियत करो कि पढ़ाई के बाद पहले 4 महीने लगाएंगे, फिर अपनी जॉब और सर्विस करेंगे। इसकी सब नियत करते हो? कौन नियत करता है पढ़ाई के बाद 4 महीने लगाएंगे? अल्लाह तौफीक दे। अच्छा, इस साल किसकी किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है, जरा हाथ उठाओ। इस साल किसकी फाइनल ईयर है? जिसका भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, भाई बेटा बैठ जाओ। इस साल किसका जरा जिसका फाइनल है वो जरा खड़े हो, जिसका फाइनल ईयर है जरा खड़े हो, जिसकी इस साल पढ़ाई पूरी हो रही है वो खड़े हो जाओ। सब मेरे पास आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ भाई, सब मेरे पास आ जाओ, पीछे से आगे आ जाओ। मैं वो पूरा कर डाल माशाल्लाह, सब मेरे पास आ जाओ। ऐसे भी नहीं पढ़ा था। सब यहाँ बैठो,
जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई है वो सब मेरे पास आ जाओ। ओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ अल्लाह की दुआ। जिसका फाइनल ईयर हो रहा है उनको मैंने बुलाया, सब यहाँ आ जाओ मेरे पास। माशाल्लाह वाह भाई वाह भाई वाह। जिसका इस साल फाइनल ईयर है वो तो तय कर लो, हम इंशाल्लाह 4 महीने लगाएंगे। भाई बैठ जाओ। जिसका इस साल का फाइनल ईयर है, इस साल फाइनल ईयर है, आ जाओ माशाल्लाह वाह भाई वाह। भाई ऐसा ना करो, जितने प्यारे बच्चे होकर ऐसा करते हो, जितने अच्छे बच्चे होकर ऐसा बैठ जाओ। और भाई और इसमें इस साल का किसी का फाइनल ईयर तो नहीं? अच्छा अब देखो दूसरी बात सुनो, आपने नियत कर ली कि पढ़ाई के बाद 4 महीने जाएंगे इंशाल्लाह। दौरान तालीम जिसको 40 दिन की छुट्टी मिलेगी वो नियत कर लो हम इस साल 40 दिन जाएंगे, जाओगे इंशाल्लाह। इस साल किसको 40 दिन की छुट्टी मिलने वाली है? जरा तो साहब अच्छा तो जरा खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, सब खड़े हो। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? और उनके लिए से उस अमल उस बात को सुना जाता है।